So, good morning, dear friends. Today we will first continue with one more instrument which is called as a transformer, which works on the principle of mutual inductance. So, first we will try to complete the transformer, and then we will go for the problem solving again. So today here let's start with the concept of a transformer. Okay, so I hope you all are ready with your notebook and pen. So basically, transformer is a device which is used for many purposes. So transformer, we can use the transformer to get either higher voltage to the lower voltage. So if you are having higher voltage and if you have to take it as a lower voltage, some part of it, then also we can use the transformer. Or if we are having lower voltage and if we have to increase that voltage, then also we can use the transformer, same way. So first of all, on which principle it works, that we will go with. Okay, so we shall start with the principle. Works on principle of mutual induction. Works on the principle of mutual induction. तो हमने जो सीखा है बेटा, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन. In that, the transformer works on the principle of mutual induction. So what happens actually? There are two coils, as you know. You are having the idea about that. So circuit diagram for the transformer can be written as like this. So first of all, I will draw the primary. Of course, I will have some AC source applied across primary. Okay, and here is the core. Core can be shown like this, and here is my secondary. Here I may use my load, and across the load I can get the voltage or induced EMF. Okay, so across the load, here I will mention it as a load, and here we get EM. But the voltage we will get. Okay, so voltage or current, whatever current flowing through this, that will be okay. So now what happens? AC is connected. So this is 230 volt, 50 hertz AC. So I have explained you nicely what is 230 volt, 230 volt 50 hertz AC. Now this is called as primary P, and this is called as secondary S. What is called as primary P and secondary S. This is a material on which it is wound. So in order to show it diagrammatically, it should be shown like that. Okay, so now actually how it is fabricated. So actually, if you want to see how it is fabricated, then I can show you the diagram how it is fabricated. So as you want the diagram, I can take the iron core, soft iron core. Of course, there is there. It's also called as a limb. This portion is also called as a limb. Are you getting my point? So sometimes what happens, it is called as a limb.
on the limb, LIMB, on the limb. Okay, what is done? तो यहाँ पे मैं अपना वायर दिखाने वाला हूँ, कॉइल, इसलिए मैं कुछ लिखता नहीं हूँ। यहाँ पे अपना बेटा एक साइड को एक होता है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी, जो कनेक्ट, यहाँ पे मैंने आपको सिंबल दिखाया, तो यहाँ पे मैंने उसको दिखाया। दूसरे साइड को हम लेते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी क्या होता है बेटा, अगर दूसरा एक टाइप आपको देखना है तो ऐसा भी करते हैं कभी कभी। समटाइम्स दे टेक अ लिंब and they take a insulated copper wire for the coil. So here common limb is there, and on this common limb first they go with say primary, ये मेरा बन गया प्राइमरी, और सेकंड ऑन द सेम दे वाइंड इट सेकेंडरी। सो ये मेरा यहाँ का बन गया मेरा प्राइमरी, यहाँ पे बन गया मेरा सेकेंडरी। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डायग्राम्स। ओके, सो बन गया बेटा। इसके बाद में क्या होता है देखो। ओके, सो यहाँ पे ही दिखाता हूँ। अपन ने क्या देखा है, प्रिंसिपल दिया है म्यूचुअल इंडक्शन। सो ड्यू टू change in current flowing through primary से जो करंट फ्लो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो एसी है, that will change. So due to the change in the current flowing through the primary, क्या हो जाएगा, what will happen, magnetic flux linked with secondary changes. So यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी इज इन द विसिनिटी ऑफ प्राइमरी, तो सेकेंडरी अगर प्राइमरी के विसिनिटी में है तो क्या होता है, सेकेंडरी के अक्रॉस जो उसका लिंक है फ्लक्स, ऑफ कोर्स इसमें से करंट जाएगा, चेंजिंग करंट, ऑफ कोर्स एसी, तो यहाँ का फ्लक्स ये एरिया में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी वो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स व्हाट विल हैपन, दो सेम फ्लक्स आर रिलेटेड विद द सेकेंडरी, सेकेंडरी को भी वही फ्लक्स है, सेकेंडरी के मतलब उसकी विसिनिटी में, उसके नियर बाय एरिया में जो फ्लक्स है वो वही सेम है, वो कौन चेंज कर रहा है, प्राइमरी चेंज कर रहा है। सो ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी also change. That's why lastly what we get, EMF and current is induced in the secondary. EMF as well as current is induced in the secondary. Okay, are you getting my point? Understood that? So this is all is a rough idea about the transformer. So first of all, what you have to keep in mind, transformer, it works on the principle of mutual inductance. So it has two coils, one is called as primary and another is called as secondary. They are kept near to each other. Primary is connected to alternating source of voltage, whereas secondary is connected to the load. मतलब अपने को जो कुछ आपको वोल्टेज चाहिए वो देने के लिए उसका यूज करेंगे लोड का। लोड मतलब कौन सा भी एक रेजिस्टेंस वहां पे दिखाओ। लोड आपका कौन सा भी हो सकता है, जैसे आपका मोबाइल चार्जर का, चार्जर के लिए आपका मोबाइल का चार्जर का कनेक्शन है, आपका मोबाइल एक लोड बन जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं आपके रेफ्रिजरेटर में, तो रेफ्रिजरेटर उनका लोड बन जाएगा। तो एसी से वो करंट ले लेगा, वो वोल्टेज ले लेगा, ट्रांसफार्मर में जितना आपके रेफ्रिजरेटर को चाहिए वो उतना आगे कन्वर्ट करेगा।
आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो यहाँ पे ये सब हुआ हाउ द ट्रांसफॉर्मर इज कंस्ट्रक्टेड. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ से आगे चलते हैं. तो यहाँ से क्या होता है, अभी कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर. तो वर्किंग मैंने अभी आपको बोला है, तो ज़्यादा कुछ उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाकी कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है. लेकिन वर्किंग के मोड में अपन को कुछ टर्म्स, वी मस्ट नो द टर्म्स. तो वो टर्म्स क्या है, नाउ वी विल गो फॉर अंडरस्टैंडिंग दोज टर्म. तो वो टर्म क्या है वो अभी सीखेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर आपका आप चालू करते हैं, मतलब उसको अल्टरनेट करंट प्रोवाइड करते हैं, तो हमें कुछ टर्म लेना पड़ेगा. तो कौन सा टर्म होगा, तो वो 4 टर्म होंगे. फर्स्ट अबाउट द वोल्टेज. तो वोल्टेज 2 होगा. एक तो वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी होगा, मतलब उसको करंट दे दोगे ना, मतलब उसको आप एसी वोल्टेज अप्लाई करोगे. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लिखते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स regarding to transform. ओके, सो यहां पे क्या क्या होता है. सो अपने ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, पहले होता है ईपी. ईपी को बोलने का वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी. ईपी क्या बन जाएगा मेरा, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी. वेयर एज ईएस क्या बन जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस ऑफ कोर्स सेकेंडरी. ईपी क्या बन जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी. इंपॉर्टेंट. ईएस क्या बन जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी. बाद में, इसके बाद में आईपी, करंट थ्रू प्राइमरी, बराबर. और आईएस, करंट थ्रू सेकेंडरी. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ओके, यहां से आगे और एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, वो है एनएस एंड एनपी. आपको क्या ध्यान में रखना होगा, एनएस एंड एनपी. तो बेटा मैं लिख देता हूं पहले एनएस. एनएस हो जाएगा नंबर ऑफ, सॉरी एनपी पहले लेते हैं ना, पहले पी दिया है तो एनपी लेते हैं पहले, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी. एनपी क्या बन जाएगा आपका, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी. वाइल एनएस क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी. तो बन गया पहले ईपी इज द वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, ईएस वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, आईपी करंट थ्रू द प्राइमरी, आईएस करंट थ्रू द सेकेंडरी, एनपी क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, एनएस क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी. गेटिंग माय पॉइंट? ओके ओके. नाउ ये जो सब है इसका यूज कहां करते हैं, तो बिफोर दैट आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस टर्म. ओके, ठीक है, अभी आगे जाते हैं. तो क्या बनता है बेटा, बनता है ये कि सपोज आई हैव प्रोवाइडेड अ वोल्टेज, मतलब एसी वोल्टेज टू द प्राइमरी, मतलब ईपी मैंने प्रोवाइड किया. तो अभी क्या हो जाएगा दिखाते हैं. तो सपोज मैंने प्राइमरी को ईपी ये वोल्टेज प्रोवाइड किया. वेट फॉर अ व्हाइल. सपोज मैंने प्राइमरी को ईपी वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो देखेंगे अभी क्या होता है. सो आई हैव प्रोवाइडेड द वोल्टेज ईपी टू द प्राइमरी. तो यहाँ पे फिर से मैं
एक ट्रांसफार्मर ये करता है। यहाँ पे एसी वोल्टेज का सिंबल दिखाया, एसी वोल्टेज का मैंने सिंबल दिखाया। ये लोड आर, तो ये प्राइमरी बन गया, ये सेकेंडरी बन गया। तो यहाँ पे मैंने एसी वोल्टेज अप्लाई किया। ईपी क्या बन गया आपका? ओके। नाउ अभी सपोज जो वोल्टेज प्रोवाइड किया है उससे उसको आप छोड़ो, मतलब हमें ईपी कौन सा चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें कौन सा ईपी चाहिए? जो ईपी सेम होगा, जितना हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टर्न्स, यहाँ पे उतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, मतलब यहाँ का फ्लक्स चेंज हो जाएगा और वही फ्लक्स ये यूज करेगा। तो ईपी के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? माइनस एन डी फाई बाई टी टी। लेकिन यहाँ पे एन किसका होगा? एन खुद का होगा, उसका प्राइमरी का। तो अपन को लिखना पड़ेगा इट विल बी एन पी इंटू डी फाई बाई डी टी। इसको मैं बोला नंबर 1। ये क्या बोलेंगे? वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी। अभी क्या देखेंगे? अभी वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी अगर आपको लिखना है तो क्या बन जाएगा? ऑफ कोर्स सेम एज दैट, एनएस इंटू डी फाई बाई डी टी। आप बोलोगे सर डी फाई बाई डी टी को आपने कांस्टेंट क्यों लिया? हाँ बेटा, जो डी फाई बाई डी टी यहाँ चेंज होगा वही लिंक होगा यहाँ से। तो यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 what we can get? From 1 and 2 what we can get? We can get EP upon ES is equal to minus NP d phi by dt divided by minus NS d phi by dt। तो ये कितना बन जाएगा? NP upon NS। Are you getting my point? So ये लिखते टाइम आपको ऑलवेज ऐसे लिखने का, सेकेंडरी पहले लिखने का और प्राइमरी बाद में, क्योंकि अपना आउटपुट क्या है तो इसको हम इनपुट बोल सकते हो और इसको हम आउटपुट बोल सकते हैं। यहाँ को या इसको हम इनपुट बोल सकते हैं, इसको हम आउटपुट बोल सकते हैं। आपके यहाँ नोट डाउन करके लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका प्राइमरी का पार्ट है वो सब बन जाएगा आपका इनपुट, वेयर एज ये जो सेकेंडरी का पार्ट है वो बन जाएगा आपका आउटपुट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो आगे चलते हैं। आगे क्या होगा देखो, तो मेरा ES अपॉन EP विल ऑलवेज विल बी इक्वल टू NS अपॉन NP। ये VIMP करो इसको, दिस विल बी VIMP। 5 स्टार करके रखता हूं, मेंशन इन योर नोटबुक। आर यू रेडी? ओवर? ओके। तो ये जो है NS अपॉन NP इस केस में, नहीं तो NP अपॉन NS। ओके, सो इसको बोलते हैं हम टर्न रेशो। क्या बोलने का? टर्न रेशो K। इट मे बी either it will be what? It will be NS upon NP or it may be NP upon NS also. Okay. But for our sake of convenience, what I told you, always you take ES upon EP, secondary upon primary, output upon input। ये आपको हरदम याद में रखना हो कि आपको आउटपुट अपॉन इनपुट इस फॉर्मेट में उसको लिखना है। ओके, सो इसको बोलते हैं हम टर्न रेशियो। तो भी इसमें ये क्यों है आपका, तो ये बताता हूं। इसके आगे पहले बता के रखता हूं ना, अगर आप इंड्यूस्ड करंट का रेशियो ले लोगे तो डायरेक्टली आपको ये ध्यान में रखना होगा, इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो तो ये
ई एस अपॉन ई पी एन एस अपॉन एन पी आता है, तो इंड्यूस करंट इसके उल्टा आता है। वो कैसे आता है? ई एस अपॉन ई पी विल बी आई पी अपॉन आई एस, क्योंकि वो आपको मालूम है E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, तो वो यूज करके म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला वगैरह यूज करके आप प्रूव कर सकते हो कि ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। तो यहाँ पे जो रेशियो है ये उल्टा आएगा। तो अगर ई एस ज्यादा है ई पी कम है तो आपका आई पी ज्यादा रखना पड़ेगा और आई एस कम रखना पड़ेगा। तो ये क्या है सर? ये है रिलेटेड टू टू टाइप्स। सो यहां से हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर देखेंगे। ओके, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है? नंबर 1 होता है, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सेकंड जो है उसको बोलते हैं आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो पहले वाला है स्टेप डाउन और दूसरे वाला बन जाएगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें क्या डिफरेंस है वो अभी हम देखेंगे। दिस विल गो फॉर टेकिंग द डिफरेंस। ओके, आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप पीछे ले जाओ। आगे नहीं ले जा सकते लेकिन पीछे ले जा सकते हो। प्रीमियर में वीडियो जब लाइव चालू हो रहता है तो पीछे का देख सकते हैं, वो थोड़ा जितना होता है वो आप आगे उसको देख के कर सकते हैं, नहीं तो लेक्चर होने के बाद आप उसको नोट डाउन करो। ओके, तो आई एम नॉट गोइंग विथ मच स्पीड, नॉट स्लो ऑल्सो, नॉट फास्ट ऑल्सो, सो आई सजेस्ट यू टू नोट इट एवरीथिंग इन योर नोटबुक। ओके बेटा, तो हमने क्या सीखा वो लिखते हैं अभी। ओके, तो पहले लिख दो इंपॉर्टेंट। नंबर 1 स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना ही चाहिए। यू मस्ट बी नोइंग दिस। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ओके, तो स्टेप डाउन में क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन द इनपुट वोल्टेज, मतलब जो हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे उससे अपना आउटपुट कम होगा। तो इसका डायरेक्ट एविडेंस क्या हो जाएगा? इंप्लाइज, सॉरी टू डिस्टर्ब, इंप्लाइज क्या बन जाएगा आपका आउटपुट, मतलब ई एस विल बी लेस देन ई पी। तो ई एस अपॉन ई पी, अगर ई एस ई पी से छोटा है तो ई एस अपॉन ई पी भी क्या हो जाएगा? लेस देन 1। तो इम्प्लाइज अपना क्या होता है? ई एस अपॉन ई पी क्या होता है? एन एस अपॉन एन पी होता है, विल बी ऑल्सो लेस देन 1। सो क्या हो जाएगा? सो एन एस विल बी लेस देन एन पी। गेटिंग माई पॉइंट? तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? उसका आउटपुट वोल्टेज मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, मतलब ये वोल्टेज, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वोल्टेज इज लेस देन प्राइमरी वोल्टेज। ओके, वैसे भी लिख सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी वोल्टेज, तो इसको बोल सकते हैं आप प्राइमरी वोल्टेज। तो एन एस इज लेस देन एन पी, सो एन एस अपॉन एन पी इज लेस देन 1। तो क्या बेटा यहां पे क्या ध्यान में रखने का? तो स्टेप डाउन, डाउन का मतलब क्या? उसने कम किया। सो इट इज यूज्ड टू गेट डिक्रीज्ड वोल्टेज देन द इनपुट वोल्टेज। सो यूज्ड टू गेट a lower voltage from applied higher voltage। आपके पास हायर वोल्टेज है और आपको उसको लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या यूज करेंगे? आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर
यूज करेंगे जहाँ पे आपका ये इक्वेशन बनेगा। मतलब यहाँ पे NS अपॉन NP ये क्या है आपका K, मतलब टर्न रेशियो। तो क्या हम लिख सकते हैं, कैन आई राइट that NS upon NP is less than 1, that is my turn ratio is also less than 1। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट करना है आपको क्या क्या रखना है, ध्यान में रखना है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब the output voltage, that is the voltage across secondary, will be less than voltage across primary। डाउन करते हैं मतलब कम करते हैं, तो ES will be less than EP, so ES upon EP will be of course less than 1, so NS upon NP will be less than 1। अगर NS upon NP less than 1 है, इसका मतलब क्या, उसका टर्न रेशियो भी less than 1 हो जाएगा। और ये कब यूज करते हैं, टू गेट अ लोअर वोल्टेज फ्रॉम द अप्लाइड हायर वोल्टेज। तो ये इसका बन गया फंडामेंटल, बन गया ओके। तो यहाँ से आगे जाते हैं, आगे वाला है उसको बोलते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आगे वाले को क्या बोलते हैं हम, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अभी देखते हैं स्टेप अप में क्या होता है। तो अभी आगे जाते हैं हम, स्टेप अप में क्या होता है वो देखते हैं ओके। तो स्टेप अप में बेटा थोड़ा सा चेंज होता है, तो क्या होता है वो देखते हैं। अभी हम जाते हैं सेकंड के लिए, IMP सेकंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या बन जाएगा, अप मतलब ज्यादा, विल बी ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज। मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, मतलब वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी विल बी ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज। तो कैसे लिखेंगे, ES इज ग्रेटर देन EP। इसका मतलब क्या बन जाएगा, ES अपॉन EP विल बी ग्रेटर देन 1, इंप्लाइज मेरा NS अपॉन NP भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। Therefore क्या हो जाएगा मेरा, NS will be greater than NP। तो यहाँ पे it implies that number of turns of secondary are greater than the number of turns of primary। मतलब टर्न रेशियो K will be greater than 1। Getting my point? तो ये कहाँ पे यूज करते हैं, to get a higher value of voltage from a given lower value of voltage। तो अपन को अगर हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज लेना है फ्रॉम द गिवन लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो हम किसका यूज करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा। तो यहाँ पे हम इन दिस वे वी आर यूजिंग द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट मी रिपीट दैट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, सेकेंडरी का वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी। सो प्राइमरी से ज़्यादा वोल्टेज सेकेंडरी का होता है। ये होने के लिए आपको क्या लगेगा, ES ग्रेटर देन EP लगेगा। अगर ES ग्रेटर देन EP है तो आपको ES अपॉन EP मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो अगर ES अपॉन EP ग्रेटर देन 1 है तो ऑफ कोर्स NS अपॉन NP विल बी ग्रेटर देन 1। तो वो ग्रेटर देन 1 है तो NS विल बी ऑफ कोर्स ग्रेटर देन NP। The turn ratio K will be greater than 1. So in order to get the higher value of voltage from a given lower value of voltage, we are using the step up transformer. Okay. So इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में इम्पोर्टेंट एक चीज हम सीखेंगे, तो करंट का रेशियो कैसे बनेगा।
तो बेटा पहले अपन को वो दिया है, मैंने क्या बोला है, अगर ES अपॉन EP इज IP अपॉन IS, बराबर। तो ये कैसे वैरी करेगा अपने स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए, दैट आई विल go to teach you now. Okay, so we will learn how the current ratio will vary for the step down and step up transformer. तो देखते हैं अभी current ratio varying in the step down and step up transformer. So as I know, ES upon EP is equal to IP upon IS. So पहले number 1, for step down के लिए क्या हो जाएगा आपका, ES less than EP, so ES upon EP will be less than 1, तो आपका क्या बन जाएगा, IP upon IS less than 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका मतलब क्या बनेगा, आपका यहाँ पे नीचे ही दिखा था आपको, IP will be less than IS, और क्या लिख सकते हैं, IS is greater than IP। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए पहले नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट, बाद में नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट, ES लेस देन EP, इसके उल्टा IS ग्रेटर देन IP और ES लेस देन EP तो NS लेस देन NP, तो यहाँ पे वो लिख देते हैं NS और NS लेस देन NP। ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। सो दैट विल कम फॉर द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अभी देखते हैं स्टेप अप के लिए क्या होता है। स्टेप अप के लिए क्या बन जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए ES क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन EP, implies मेरा NS कितना बन जाएगा, NS भी ग्रेटर देन NP, है ना बेटा। नाउ ES अपॉन EP कितना बन जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन 1 बन जाएगा, तो मेरा IP अपॉन IS कितना बन जाएगा, ग्रेटर देन 1, देयरफॉर IS अपॉन IP कितना बन जाएगा बेटा, लेस देन 1 बन जाएगा। इट इम्प्लाइज माई IS विल बी लेस देन IP। तो ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। तो बाकी चीज को मैं हटा देता हूँ और आपके लिए आपको क्या क्या लिखना है उतना ही मैं बोर्ड पे रख देता हूँ। ओके, तो उतना ही आपको देखना पड़ेगा। क्या क्या मैं बोला वो एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूँ, क्या क्या बोला वो आज का ही लेक्चर, आज के लेक्चर में ही आप डायरेक्टली आपके हार्ड डिस्क में उसको सेव करो। ओके, नो नीड टू यूज पेन ड्राइव, नो नीड टू यूज मेमोरी कार्ड, ओके, नथिंग यू यूज। ओके, directly Wi-Fi connection on direct data transfer. So step down, step up। एक 2-3 दिन के लिए ऐसा आपकी दीवार पे चिपकाओगे कागज पे लिख के तो भी चलेगा, आपको हो जाएगा। ES क्या है, लेस देन EP, यहाँ पे ES ग्रेटर देन EP, नंबर 1। सेकंड, NS लेस देन NP, यहाँ पे क्या बन जाएगा, NS ग्रेटर देन NP। इसके उल्टा नंबर 3, IS ग्रेटर देन IP, यहाँ पे क्या आएगा, IS लेस देन IP, बराबर। 4, अगर NS लेस देन NP है तो NS अपॉन NP कितना बन जाएगा, लेस देन 1, टर्न रेशियो। यहाँ पे K will be greater than 1. So this is the way in which you can keep in mind the differentiation between step up and step down transformer. So that's very important. ये आपको बहुत एग्जाम में वगैरह प्रॉब्लम्स में वगैरह आपको ये हेल्पफुल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। थियोरेटिकल में भी आता है, अभी तो इसका कुछ पार्ट डिलीट नहीं किया है। ओके, अगर कुछ इसका पार्ट डिलीट भी हुआ हो तो भी ट्रांसफॉर्मर ये ऐसा है, ये आपको सीखना ही है एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ट्रांसफॉर्मर के डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसफॉर्मर मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर, तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा। तो आई विल सजेस्ट यू टू
note this down. Okay, then we will go for next one. यहाँ पे अभी एक बचा है आपका, उसको बोलते हैं इफिशियंसी. क्या बोलते हैं उसको? इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर. अभी हम क्या सीखेंगे? इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर. कितना इफिशियंट है कौन सा भी मशीन, कितना इफिशियंट है, वो निकालने के तरीकों को क्या बोलते हैं? इफिशियंसी. तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? तो पहले मैं आर्टिकल का नाम लिखता हूं. इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, उसको हम बेटा ईटा भी बोल सकते हैं. ओके, तो ईटा कैसे लिखते हैं? तो ईटा आता है आपका आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर multiplied by 100. This one is the basic formula, जनरल फॉर्मूला. इसको मैं बोलता हूं जनरल फॉर्मूला. ओके, तो पावर कैसे आते हैं? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. तो आउटपुट, ओके, अपना आउटपुट क्या है? इनपुट क्या मैं बोला? प्राइमरी. और मैं आउटपुट क्या बोला आपको? अपना आउटपुट क्या है? सेकेंडरी है. तो इनपुट है अपना प्राइमरी और आउटपुट है अपना सेकेंडरी. पावर. ओके, सो आउटपुट पावर मतलब पीओ कैसे बनेगा? पीओ वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज ईपी, करंट आईपी. ओके, ओ सॉरी, ये प्राइमरी का ना पीपी है. और पीओ आउटपुट का कितना? सेकेंडरी. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अंडरस्टूड? ओके, ठीक. तो नंबर 1 पहले लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. हम अभी सीखेंगे स्टेप डाउन के लिए ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा. ईटा विल बी ईपीआईपी अपॉन ईएसआईएस इंटू 100%. बराबर? ओके, तो यहाँ पे स्टेप डाउन के लिए क्या होता है? ईएस इज लेस देन ईपी. बराबर? ईएस लेस देन ईपी. तो उल्टा किया, ईपी अपॉन ईएस किया. ईपी अपॉन ईएस, प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा रहेगा ना, विल बी ग्रेटर देन 1. और इसके उल्टा आईपी अपॉन आईएस विल बी लेस देन 1. तो यहां से तो डायरेक्टली कर नहीं सकते. तो इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से ही अपन को क्या मिलता है? अगर उसका इफिशियंसी 1 है, यहाँ पे 1, हाँ, ये बन गया परसेंटेज का, परसेंटेज इफिशियंसी. तो उसको भी ध्यान में रखो, मतलब आप भूल जाओगे नहीं तो. इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से ये निकालने के लिए आपको इफ इफिशियंसी इज 1, तो क्या बन जाएगा? 1 मतलब परसेंटेज इफिशियंसी विल बी 100% इफिशियंट. मतलब आउटपुट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू इनपुट. बराबर? तो आउटपुट क्या है? ईपीआईपी. तो ईपीआईपी विल बी इक्वल टू ईएसआईएस. इसका मतलब ईपी अपॉन ईएस विल बी इक्वल टू आईएस अपॉन आईपी. यहाँ से वो आता है, यहाँ से वो जो हमने कैलकुलेट किया था वो आता है. मैंने फॉर्मूला दिया था आपको करंट और वोल्टेज के रिलेशन में. समझ गए? और यहाँ पे सेकेंडरी के लिए क्या आएगा? उल्टा आएगा. सेकेंडरी मतलब स्टेप अप के लिए कैसा आएगा? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए
स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर मैंने यूज किया, यही आएगा, ईटा विल बी इक्वल टू सेम ईपी आईपी ईएस आईएस। खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईपी विल बी, हाँ स्टेप अप है, लेस देन ईएस, तो ईपी अपॉन ईएस क्या बन जाएगा, लेस देन 1 मिलेगा ये इस केस में, और आपका आईपी अपॉन आईएस विल बी ग्रेटर देन 1। समझ गए? तो यहाँ पे वो भी आएगा, आपका सेम आएगा परसेंटेज इफिशिएंसी। तो अगर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इफिशिएंट चाहिए आपको, नहीं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इफिशिएंट चाहिए, आपका रेशो जो है, वॉट एवर द रेशो और दिस इनइक्वालिटी, सॉरी दिस रिलेशन ईपी आईपी शुड बी इक्वल टू ईएस आईएस। अगर वो सेम है तो आपका परसेंटेज इफिशिएंसी 100, नहीं तो प्योर आपका इफिशिएंसी कितना बन जाएगा, 1। ये प्रोबेबिलिटी जैसा है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आप 1 लेते हो ना, और उससे कम हो सकता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 मतलब 100%। अगर मैंने टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा, 2 प्रोबेबिलिटी, 2 मतलब 2 चांसेस है, तो 1/2 दैट इज 0.5, 0.5 मतलब 50%। सो देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो वैसे ही यहाँ पे इफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 1। जितना मैं दे रहा हूँ उतना अपन को आउटपुट मिल रहा है, उसके प्रोपोर्शन में हम कैलकुलेट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर। सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच आर आस्क्ड ऑन द ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे एडी करंट्स का भी यूज मतलब ये होता है। मैंने आपको बताया था एडी करंट्स में हिस्टेरिसिस लॉस प्लस एडी करंट, ड्यू टू एडी करंट थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे भी आप सीख सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपको वो बताया है। दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर एंड हियर we will turn towards the problem solving session. So I will request you to be ready with the problem solving session. तो बेटा ओके, आर यू रेडी? तो आज मैंने आपको 15 फाइनल नाम का एक पीडीएफ दिया है, तो हम ट्राई करेंगे आज के दिन में उसको पूरा करने के लिए, नहीं तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। 15 फाइनल पीडीएफ .pdf। तो यहाँ से मैं जो आपको प्रॉब्लम दिया हूँ हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए, है ना? ठीक है, तब एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। तो जितना हमें टाइम बचेगा उतना हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो पहला प्रॉब्लम नंबर 1 आपका पीडीएफ में 3 क्या दिया देखो, अ करंट फ्रॉम ए टू बी, पॉपुलर क्वेश्चन है ये। करंट फ्रॉम ए टू बी इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। ओके, ए टू बी में करंट इंक्रीज कर रहा है। What is the direction of induced EMF if any in the loop as shown in the figure? तो इस लूप में आपका इंड्यूस्ड EMF कैसे हो जाए, इस लूप में आपका इंड्यूस्ड EMF कैसे हो जाए? तो पहले देखो नंबर 1, अगर आपका करंट ऐसा है, वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, बाद में उसको छोड़ो। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो बेटा पहली चीज आपको उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल है, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ से नीचे जाएगा, वहाँ से ऊपर आएगा, तो यहाँ पे नीचे जाएगा मतलब अंदर जाएगा, सॉरी, यहाँ से क्रॉस आएगा, यहाँ से डॉट आएगा। और करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक भी इंक्रीज होता चलेगा, मतलब अंदर से बाहर में जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स विल इंक्रीज। ओके, वो छोड़ दो। अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो वहां से आने वाला कौन है, नॉर्थ है, तो
इधर कौन पास होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा, तो उसके पीछे कौन होगा, तो नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे, नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे। इसको ऐसे ट्रीट करो, फिर से देखो, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ से नीचे से क्रॉस, ऊपर से डॉट, डॉट मतलब आगे आएगा, मतलब नॉर्थ पोल आपके सामने आ रहा है, मतलब वो कॉइल से आगे जा रहा है, अवे जा रहा है। सो नॉर्थ पोल गोइंग अवे, मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, अगर नॉर्थ पोल गोइंग अवे है तो कॉइल, उसको बुलाने के लिए कौन बन जाएगी, कॉइल बन जाएगी खुद साउथ पोल। तो साउथ का कैसा है, ऐसा, साउथ मतलब क्लॉकवाइज, तो इसमें आंसर होगा आपका क्लॉकवाइज। सो लेट मी चेक द क्वेश्चन, यस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ एनी इन द लूप, हाँ, सो करंट क्लॉकवाइज करंट, सो बी आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ओके, सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। ओके बेटा, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2 आपका पीडीएफ में 4 नंबर का प्रॉब्लम। द करंट I in a coil varies with time as shown in the figure. So current I in a coil varies with time as shown in the figure. ऐसे दिया है आपको, ये वेरिएशन ऑफ करंट दिया है, करंट कैसे वेरी करता है ये आपको दिया है। और क्या पूछा है बेटा, the variation of induced EMF with time. So you have to use you have been asked to E versus T ग्राफ। तो पहले हम अपन को E versus T का ग्राफ निकालना पड़ेगा, तो ये ऐसा E versus T। तो इसमें दिया क्या क्या है, सो लेट मी चेक दैट ऑल्सो। इसमें दिया क्या क्या है बेटा, तो यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे दिया है T/4, यहाँ पे दिया है T/2 एंड 3T/4, और ये बन गया 0। तो यहाँ पे भी इतना ही करना पड़ेगा, बराबर। और इसके बाद में T भी दिया है आपको, इसके बाद में ये थोड़ा सा आगे करता हूँ, यहाँ पे T भी दिया, 0, T/4, T/2, 3T/4 एंड इसको बोलेंगे T, तो इसको यहाँ पे T लिखें। ओके, तो देखो एक मिनट, ओके, करंट I in the coil varies with the time as shown in the figure. इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होगा, 0 to T/4 करंट इंक्रीज कर रहा है, 0 to T/4 आपका करंट इंक्रीज कर रहा है, बराबर। करंट इंक्रीज कर रहा है मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा कॉइल का, तो ऑफ कोर्स उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ जाएगा, बराबर। बाद में T/4 टू T/2 करंट कांस्टेंट है, सो देखो, हाँ, नंबर 1, 0 टू T/4 क्या हो रहा है, करंट इज increasing, therefore flux will increase, therefore EMF will be induced। बन गया, ओके। तो अभी थोड़ा थोड़ा उसका डायग्राम भी देखते जाओ, ओके बेटा। सेकेंड में T/4 टू T/2 क्या हो रहा है, करंट आपका क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना करंट आपका, करंट आपका कांस्टेंट है, सो फ्लक्स चेंजिंग विल बी 0, देयरफॉर नो EMF इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे जो एरिया आपका बन जाएगा, यहाँ पे T/4 टू T/2, T/4 टू T/2, ये बन जाएगा 0 का, और यहाँ पे करंट इंक्रीज कर रहा है, तो EMF क्या करेगा, उसको ट्राई करेगा डिक्रीज करने की, उसके अपोजिट रहेगा। और यहाँ पे करंट डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे EMF अपना इंक्रीज करेगा, उसको अपोज करने के लिए। ओके, सो
your answer in this case, of course in between t by 4 to t by 2 nothing will be there. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, जैसे फ्लक्स आपका इंक्रीज करेगा आपका इंड्यूस ईएमएफ भी इंक्रीज करेगा, लेकिन कैसे करेगा? सो आई थिंक द ऑप्शन विल बी बी, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट ऑफ दैट. ओके, सो राइट दैट. सो देखो अभी 0 to t by 2 ये करंट इंक्रीज कर रहा है. ओके, ईएमएफ विल बी इंड्यूस वो है, लेकिन वो कितना हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, बिकॉज ई कितना है? ए विल बी माइनस एल डी आई बाई डी टी. बन गया, यहाँ पे 0 बन जाएगा बराबर. सो ई विल बी 0, और यहाँ पे इसका उल्टा बन जाएगा t by 2 to 3t by 2. करंट इज डिक्रीजिंग, वो भी लिख देते वहाँ पे. t by 4 to थर्ड वन t by 4 to t by 2 to 3t by 4. ये क्या बन जाएगा? करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे di by dt, यहाँ पे भी di by dt, यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे आपका स्लोप पॉजिटिव है ना, और यहाँ पे आपका स्लोप निगेटिव है. तो जहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये निगेटिव, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ निगेटिव बनता है बराबर. गेटिंग माय पॉइंट? डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, तो ये भी कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन निगेटिव में जाएगा, तो ये ऐसे पे रहेगा. टी बाई 4 को वो करंट कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब ये अभी 0 बन गया, ये अभी पूरा ही. और यहाँ के वो निगेटिव बन गया, तो निगेटिव निगेटिव ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ आके फिर से वो 0 बन रहा है. तो दिस ऑप्शन विल बी, दिस मतलब दिस आंसर विल बी करेक्ट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट. आई विल रिक्वेस्ट यू टू नोट दिस डाउन. So beta, now we'll go for next problem. Okay. So next में आपको क्या दिया बेटा, वो भी देखते हैं फटाफट. ओके, नेक्स्ट में क्या दिया आपको?
स्ट्रेट कंडक्टर. सो प्रॉब्लम नंबर 3 PDF में आपका कितना 22 नंबर का क्वेश्चन है आपको. A straight conductor of length 0.4 मीटर is moved with a speed, तो v दिया है आपको, एकदम सिंपल है 7 मीटर पर सेकंड, perpendicular to magnetic field. Okay, so theta will be 90 degree. Okay, intensity B is equal to 0.99 वेपर पर मीटर स्क्वायर. सो इंड्यूस्ड EMF E, तो E पूछा इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा EMF. ओके बेटा, तो बेटा EMF इंड्यूस्ड के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है. ओके, तो EMF इंड्यूस्ड के लिए एक मिनट. ओके, EMF इंड्यूस्ड के लिए यहाँ पे ओके B इंटू L क्रॉस V. ओके, एक मिनट. B इंटू L क्रॉस V, एक मिनट ना, क्या दिया 1 मिनट. हाँ, BL भी आता है एक्चुअली, एक मिनट. या परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ना. ओके, सॉरी मैंने उल्टा, सॉरी वेरी, ये उल्टा आएगा ना उसका, V क्रॉस B आएगा, L इंटू V क्रॉस B, L इंटू V क्रॉस B. सो BLV साइन थीटा. तो यहाँ पे हाँ, ये तो आपको फॉर्मूला मालूम है, BLV इंटू साइन 90 साइन 91. तो अपना E कितना बन जाएगा BLV बन गया. तो अभी कुछ नहीं, EMF डायरेक्टली निकालना है. B कितना आपका 0.9, L कितना 0.4, V कितना 7. सो 7 4 जा 28, 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 2.8. सो एक दो, so it will be 2.52. so EMF will be 2.52 volt. समझ गए? So that was very easy problem. Let's go for some next problem. Okay, so I'll suggest you to note this down. I will go for the problem 4. प्रॉब्लम 4 में आपको क्या दिया बेटा, तो बेटा प्रॉब्लम 4 में आपको क्या दिया है. प्रॉब्लम 4, प्रॉब्लम 4 में दिया है, मतलब आपका 23 PDF. क्या दिया आपको, कॉइल हैज एन एरिया, एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर किया. 50 टन्स, N इज इक्वल टू 50. इट्स रेजिस्टेंस इज 2 ओहम, R इज इक्वल टू 2 ओहम. इसके परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड कॉइल ऐसे परपेंडिकुलर रखा, मतलब एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. थीटा कितना हो जाएगा 0, cos 0 कितना, cos 0 हो जाएगा 1. ओके, इफ इट्स हाँ, तो इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, B कितना दिया है 0.02 वेबर पर मीटर स्क्वायर. इफ इट्स रिमूव्ड इन 1 सेकंड देन एवरेज इंड्यूस्ड EMF. सो T दिया है 1 सेकंड, मतलब डेल्टा T दिया है, रिमूव्ड इन एवरेज. तो T1 को लेने का 0, T2 को लेने का 1. सो T2 माइनस T1 ये कितना बन जाएगा 1, और यही अपना डेल्टा 2 बनता है. तो इसलिए ये बन गया. तो अभी अपना EMF इंड्यूस्ड कैसे निकालते हैं, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt. ओके, तो E कैसे निकालेंगे, माइनस, इसको डेल्टा 5 में लिखेंगे, डेल्टा 5 बाय डेल्टा T. ओके, तो यहाँ पे क्या है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया है. तो डेल्टा 5 मतलब उसको वही रखने का. कॉइल किया है ना, एक मिनट, क्या दिया उन्होंने, इसके रिमूव. ओके, रिमूव किया मतलब ये क्या करेंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, तो एक में फ्लक्स 0 ले लेंगे. हाँ बराबर, ये कितना हो जाएगा माइनस
phi2 माइनस phi1 अपॉन डेल्टा टी। फाइनली रिमूव किया है, रिमूव किया मतलब phi2 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो माइनस ऑफ 0 माइनस phi1 अपॉन डेल्टा टी। तो ई लास्टली कितना बन गया, phi1 अपॉन डेल्टा टी। phi1 कितना निकालेंगे, एन बी ए कॉस थीटा अपॉन डेल्टा टी। एन कितना है अपना, एन 50, बी कितना 0.2, ए कितना 100 इंटू 10⁻⁻⁴, ये 1 आ गया कॉस, और ये डेल्टा टी 1 आ गया। तो ये कितना आएगा, ये देखो अभी 5 2 10 बराबर, 5 2 10, 50 2 100, मतलब ये 10 बन गया 10, और ये 100 मतलब 1000 बन गया 1000, मतलब ये 0.1 बन जाएगा। तो मेरा EMF विल बी 0.1 वोल्ट। सो बेटा आंसर विल बी 0.1 volt. So I will suggest you to note this down. Are you ready? Then note this down. Okay. So then we'll go for the next problem. Okay. Note किया आपने बेटा? चलो. Let's go for the next problem. इसके बाद क्या आएगा देखते हैं. इसके बाद अपना आएगा दूसरा वाला. Okay. Very sorry. Problem number 5. तो बेटा अभी लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। 4 बन गया ना बेटा, ठीक है। ये कितना बन गया, 1 2 3 4 बन गया, 5 और प्रॉब्लम लेते हैं। 25 इंटरेस्टिंग है, मतलब आपका प्रॉब्लम 5 ये PDF का है। ओके, तो एक आपको कॉइल दिया है और मैग्नेट ऊपर से गिर रहा है, नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेट ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। अ कॉपर रिंग हैविंग कट सच एज नॉट टू फॉर्म अ कंप्लीट लूप। यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको एक कट मारना पड़ेगा उसको। ये कॉपर रिंग है, उसको कट है, हालांकि वो कंप्लीट लूप नहीं बना पाएगी। इज हेड हॉरिजॉन्टली एंड अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू द रिंग विथ इट्स लेंथ अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग शोन इन द फिगर। The acceleration of the falling magnet. Okay, तो I will suggest you to exactly note down this. ये केस बन गया आपका अलग, तो मैं आपको पहले बेसिक केस समझाता हूँ. ओके, सो डिस्कशन ऑफ बेसिक केस. तो बेसिक केस में क्या होता है बेटा, तो ये मेरा कंप्लीट रिंग है और अगर मैग्नेट फॉल कर रहा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो बेटा क्या हो जाएगा, दिस इज द केस दैट नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग द कॉइल. ओके, नॉर्थ पोल क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं. अभी क्या हो जाएगा, यहां पे आपको जी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा. जी इफेक्टिव बन जाएगा आपका, यहां पे क्या हो जाएगा, कॉइल क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, उसको ढकेल देगा. मतलब यहाँ पे जी नीचे है, ए ऊपर है, और ठीक है, तो ये बन जाएगा जी माइनस ए. जी इफेक्टिव भी जी माइनस ए. आर गेटिंग माय पॉइंट. तो उसको अपोज होगा आने के लिए, और कॉइल इतना बड़ा होगा कॉइल अगर, तो शायद वो ऐसे जाके ऐसे ऐसे हो भी सकता है. एडी करंट्स में उसको बोलते हैं कुछ जंपिंग, ये बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं उसको. तो ये थियरी है, लेकिन बट हैपन्स ओनली व्हेन कॉइल इज कंप्लीट. ये इंपॉर्टेंट है आपको. अगर मैंने कॉइल को कट किया, देन आई विल नॉट बी एबल टू पास. ओके, बट ये बाकी ठीक है, बाकी ठीक है. आई विल नॉट बी एबल टू पास. ओके, तो यहाँ पे हम अपना ऑप्शन देखते हैं. अगर आई नहीं हो तो ये कितना हो जाएगा, ये
ऊपर का ए कितना हो जाएगा, उसको जो फोर्स मिलेगा उसका ऊपर का एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. सो इट विल बी इक्वल टू g. सो एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट विल बी g. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, then let's go for the next one. Okay, so I hope you have wrote that. Okay, then go to solve the next problem. next problem में क्या है बेटा, देखते हैं थोड़ा सा. next problem में आपको क्या पूछा है, a solenoid of inductance 2 Henry, okay, carries a current 1 ampere. what is the magnetic energy stored? एकदम सिंपल है बेटा. थोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. सो माइनस एल डी आई बाई डी टी कैसे लिखेंगे, I2 माइनस I1 अपॉन T2 माइनस T1. माइनस एल कितना दिया आपको, हाँ एल निकालना है ना. ओके ओके ठीक है. सो ये कैसे लिखेंगे, E 8 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू कितना, माइनस एल I2 कितना है 4 माइनस 2 अपॉन 0.5. ओके, तो L कितना बन जाएगा, ये 4 माइनस 2 मतलब माइनस एल अपॉन एल इंटू 2/0.5, मतलब ये बन जाएगा 20L अपॉन 5 इज इक्वल टू 8. तो L कितना बन जाएगा, ये अभी निगेटिव साइन को कंसिडर मत करो, मतलब वो उसका ये हो जाएगा. ओके ओके, कितना बन जाएगा 5 8 जा 40/20, ये बन जाएगा 2 हेनरी. सो इसका आंसर आ जाएगा 2 हेनरी. सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन. ओके, इसके बाद में और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ उसमें दिक्कत का काम नहीं है. ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 8 क्या दिया बेटा, देखो सेम लाइक रेजिस्टर है, ये 3 इंडक्टर दिया है और यहाँ पे ऐसे उनको कनेक्ट किया है, उनको ऐसे कनेक्ट किया. तो क्या पूछा है, प्योर इंडक्टेंस ऑफ 3 हेनरी ईच. एल कितना दिया आपको, 3 हेनरी दिया है. ओके, सो द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. सो L इक्विवेलेंट फिर भी क्या हो जाएगा, L पैरेलल L, मतलब कितना हो जाएगा L/3. तो 3/3 दैट इज 1 हेनरी. ओके, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका ही केसेस बना सकते हैं. जो सब रेजिस्टेंस में होता है वो सभी केसेस यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं. हालांकि अभी क्या किया उन्होंने, रेजिस्टेंस का पार्ट कट किया है, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल, तो वो जोर डालेंगे इंडक्टर के ऊपर. तो इंडक्टर तो आपको पढ़ना है, तो इसीलिए जितना भी आपने रेजिस्टेंस का केस सीखा है, लेकिन वो तो आपको अभी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडक्टर में आपको फिर से सीखना पड़ेगा. तो एक्स्ट्रा आपको देते हैं, एक्स्ट्रा में कैसे करेंगे, ये सपोज ऐसे दिया है, फटाफट बताओ मेरे को. L1 L2 L3, ये कितना बन जाएगा, L1 प्लस L2 पैरेलल L3. ओके, सपोज ये ऐसे दिया है, ये दिया है ऐसा और ये दिया है ऐसा, ये क्या बन जाएगा, इट विल बी बैलेंस्ड डिस्टेंस नेटवर्क इफ, ये क्या बोलेंगे, L1 L2 L3 L4 and L5. सो इफ L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू L3 अपॉन L4, देन क्या करने का, इसको निगलेक्ट करने का, इसको फिर से क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड डिस्टेंस नेटवर्क. तो ऐसे हम इंडक्टर का यूज करके उसके इंडक्टर के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में और एक प्रॉब्लम में लगता नहीं है. सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर प्रॉब्लम्स फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो जैसे आप डाउट को पूछते
you may continue with the asking of the problems of electromagnetic induction. And I declare that this topic is over, and from tomorrow also the problem solving is also over. So from tomorrow we will start with the next topic, that is called as the alternate current. Of course I will give you the practice sheet also, जैसे मैंने प्रॉब्लम दिया है और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड फॉर द नेक्स्ट लेट मी रिपीट टुडे आल्सो फॉर योर मेजर टेस्ट देयर विल बी 2 टॉपिक्स. वन विल बी मैग्नेटिज्म, अभी तो उसको उसमें कट हुआ है, कट हुआ पोर्शन नहीं है. सो वन विल बी मैग्नेटिज्म, another will be electromagnetic induction. So I hope you will study well for both on the topics. I have given the sufficient number of lectures for that, sufficient amount of practice for that. So wish you best of luck, and try for your exam nicely. Study all the content, read NCERT, read my notes, मतलब जो मैंने आपको दिया जो आपने नोट डाउन किया. And wherever it is possible, not possible, you have to compulsory show me your notes. So one by one you have to show your notes. So that's all for the today, and I will suggest you to go through this all topic and problems. So thank you, thanks a lot, bye.